السلام علیکم ناظرین انٹرنیشنل ریٹنگ کمپنی نے پاکستان کے بارے میں بڑے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے. ان کی پچھلی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا اور جو عدم استحکام پر مبنی ہوگا. اس پر حامد میر کے شو میں بڑا بہترین تبصرہ ہوا. یہ ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ فچ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 18 ماہ تک چلے گی، تو یہ کیوں ان کو نظر آ رہا ہے ایسے؟ میر صاحب دیکھیں، حکومت ہے، ہمارا تو خیال یہ ہے اور ہمارا یقین یہ ہے کہ صرف 5 سال چلنا ہے انشاءاللہ. جی زرتاج گل صاحبہ، فچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت 18 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. کیا یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جائے گی یا کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا، کیا ہوگا؟ آپ تو فچ کی رپورٹ میر صاحب 18 مہینے کہہ رہے ہیں نا. میں کہتی ہوں کہ یہ زبردست ان کی حکومت چلائی جا رہی ہے، ورنہ یہ 18 دن بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کا صرف حکومت یا کرسی نہیں جائے گی، پی ایم ایل این کی سیاست بھی جائے گی، یہ اپنے کارکن سے بھی جائیں گے، یہ اپنے مستقبل سے جائیں گے. اور یہ ان کو مبارک ہو کہ جو ان کے اوپر پیداوار ضیاء الحق کی پیداوار کا ان کے اوپر وہ لگتا تھا، یہ وہی آمریت کے ساتھ ان کی وہی آمریت کی سوچیں. یقین کرے کہ میر صاحب انہوں نے کخ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. اب یہ صرف زور زبردستی کر رہے ہیں، ملک میں اس وقت جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے. تم آپ فچ کے 18 مہینے کی بات کریں، میں کہتی ہوں 18 مہینے کے ساتھ ساتھ ان کی کرسی لپیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام پولیٹیکل کیپٹل بھی ختم ہو جائے گا پی ایم ایل این. ڈاکٹر صاحب، آپ تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کخ بھی نہیں رہنا، اور یہ بھی بتائیں کہ کخ ہے بھی ان کے پاس. دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا، پسینہ ان کو بہت آ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو رومال شمال دیں، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. آپ نے نہیں، میری جب آپ باتیں چھپاتے نا تو میں یہی حشر ہوتا ہے. مجھے ذرا ٹیمپریچر تھا، میر صاحب کو حکم تھا. آپ تو ٹیمپریچر ہوگا آپ کو. اچھا، ٹیمپریچر اور بڑھے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا نا جی کہ آپس کی جو لڑائی ہے، اس میں گزارش یہ ہے، آپ نے کہا جی پارلیمانی سیاست کا یہ کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں. تو پارلیمانی سیاست کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو یہ کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اتنی دشمنی پارلیمانی سیاست کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی. پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی آپ عزت احترام کرتے نا تو آپ تب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم 45 پہ 8 فروری کو جیت کے آئے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ 17 سیٹوں سے آپ فارم 47 کے ذریعے، آپ فارم 49 کے ذریعے ابھی تک آپ ریزلٹ چینج کر رہے ہو، اور آپ کو کہیں پر 3 ووٹ ملا تو آپ نے اس کو 1300 کر دیا ہو. آپ کو آپ کی غلطیاں ایسے پکڑے جا رہی ہوں کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو. اور آپ کا جو فارم 45 ہے وہ امرود بیچنے کے لیے، پکوڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایک ایگریمنٹ کر لیں آج کہ 2018 کے الیکشن پہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے، نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کریں، اصل حقائق سامنے لے آئیں. جو 2024 کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار. میرے صاحب ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں، میں اس کا بھی بالکل جواب دیتی ہوں. جی آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں 2018 میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں، ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے. آپ نے کہا جی آر ٹی ایس سسٹم کی بات کر لیں. میر صاحب 2 پیمانے ہیں. جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، ان کی طرح لاٹھی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے، پی ایم ایل این کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں. آپ آتے ہیں ووٹ کے ذریعے. ووٹ ہم نے لیا، ابھی بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ اپنا ووٹ بتا دیں. دوسرا آپ نے کہا آر ٹی ایس سسٹم. جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 2018 میں سب سے زیادہ الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشن پی ٹی آئی کی تھی، جب آپ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 33 ووٹ سے 3300 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا، انکلز کو فون کر کے، جنہوں نے ہمیں تھن میجورٹی کروائی تاکہ آپ رجیم چینج میں آپ ہمیں ختم کر سکے. اور آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو رجیم چینج میں 2022 میں آپ نے گرا دیا، جس میں آپ کا اکنامک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ 6.1% کے ساتھ جاری ہے، اور آپ نے مانا کہ آپ اس کو مائنس میں جا رہے ہیں. اور اگر آپ 2.3% پہ چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالیں گے. ایک سوال ہے، تو اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب، میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی فکر ہے، اپنے کارکنان کی فکر ہے. انہوں نے اپنے دل کی ضد میں جیل کی کال کوٹری میں ان کو ڈالا. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدت کیس ختم ہوا. یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی اس میں ان کو کال کوٹری میں کیوں ڈالا ہوا ہے، ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے، ان کو تو باہر آ جانا چاہیے، ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے؟ خان صاحب ہے
खान साहब के आप बेटों से भी बात करने नहीं देते, ये तारीख याद रखेगी। मुझे अभी नहीं पता जेल का, अगर नहीं करने दे रहे तो ज्यादती कर रहे हैं, मैं बात करूंगा, बिल्कुल वज़ीर दाखिला से बात करूंगा। अच्छा। करने दें, लेकिन वज़ीर दाखिला से मैं करूंगा कि जी करने दें। मीर साहब इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला से कहूंगा कि वो इस बात का नोटिस ले। ये मुझे ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हैसियत ज़्यादा है या इसकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत ज़्यादा है? ये मुझे बता सकते हैं? मुतलका केस है ना, आपको पता है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म 547 वाला भी कट मोशंस के अंदर, बजट के अंदर, पार्लियामान के अंदर मौजूद था, लेकिन इंटीरियर के कट मोशंस के ऊपर जो कि मैंडेटरी है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाबदेही नहीं है। ये मुझे बताएं, क्या इनकी इतनी जुर्रत है, इतनी हैसियत है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर से जाके ये पूछ सके, उतनी बात करे जितना आप में वाकई दम है? वो आप में दम नहीं है। बाकी ये कि आपके ये मामलात है, ये जो मामला हमारे वज़ीर दाखिला की तर्जुमान बन रही हैं, हमारी गवर्नमेंट की तर्जुमान बन रही वो हैं। आपके हैं वज़ीर, भाई हम रोज शाम को इकट्ठे होते हैं, आपको क्या पता है इस बात वो का? किसके सेनेटर हैं? वो हमारे सेनेटर हैं, वो अच्छा। हमारा वज़ीर दाखिला है। अच्छा, कमाल है। पक्की बात है ना। वो मुझे ये बताएं, हमारे एक या दो वज़रा के ऊपर आप इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं, कितने पीटीआई के असल चेहरे आपकी काबीना में थे, मुझे वो बता दें। मीर साहब लिस्ट मंगवाएं, मैं आपको बता देता वैसे हूं। तो आप उनके वो मिनिस्टर जो है वो अब आपके साथ हैं, फैसल वाडा। नहीं, मैं खान की तर्जमान यहाँ पे बैठी हुई ना, खान के नाम के ऊपर वोट लेकर है, मेरा जाती एक वोट भी नहीं है। आपने मुझे बेंच का निशान दिया था, आपने तो हमारा बल्ले का निशान भी छीन लिया। तो आप बेंच के निशान पे भी जीत गई हैं? जी, मैं बेंच के निशान के ऊपर भी जीत गई हूँ, ठीक है ना। तो खान अगर आपको चिमटा मिलता फिर भी जीत जाती। चिमटे से भी धुलाई करनी थी। हमने तो इनको बैंगन से भी हराया हुआ है, हमने तो इनको चिमटे से, जूते से भी अच्छा, हराया इनके सवाल का जवाब चले। खान की तर्जुमान में बैठी हुई हूँ, आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क के, आपका जो अपनी पार्टी ना, उसके वज़ीर आज़म के तर्जुमान बने। पहले तो मैं ये बताए कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त हालत है वो क्या है, कौन सी बीमारी का बहाना उन्होंने अब सोचना है अपने लिए। प्लेटलेट्स तो कहानी तो खत्म हो गई, अब जो है वो कमर दर्द की भी कहानी खत्म हो गई। कोई तीसरी बीमारी ढूंढे जिसके ऊपर आपने 150 के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने मुल्क से भागना है। आप अपने लीडर की बात बताएं, आप उनके तर्जमान बने। मेरा लीडर इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, आपके जबर और जुल्म और फस्तायत का इस वक्त मुकाबला कर रहा है। क्लीन लोग आपके सामने आज आपके पूरे प्रोग्राम में अवाम का ही पैमाना है। ज़रताज बीबी ने सिवाय रोने धोने के, सिवाय रोने धोने के और कोई काम पसीने की बात इनके नहीं। छूट रहे, रोना धोना मुझे कह रहे हैं। हमें मैं पकड़ तो लिया, हमें strong पकड़ voice लिया, से हमें बात पकड़ कर रही लिया, हूं। हमें पकड़ लिया। हमने आपके अगर 4 साल कोई बर्दाश्त किया है मीर ना, सुन लेना आप, सुन अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई रोती दुल्हन है ना, तो हमने नवाज शरीफ हमने है। राना सनाउल्लाह, मैं और मेरा हमने बेटा, राना मैं और मेरा सनाउल्लाह भाई, को आपने मेरी पकड़ा। पार्टी। अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई रोती हुई दुल्हन है जो हर वक्त अपना रोना रहता है, नहीं, ऐसे फजूल मुझे बातें क्यों कर रही निकाला है, वो जो नवाज मर्जी शरीफ करे। वो दुल्हन है। हम तो लड़ने वाले, हम दुल्हन है। पाकिस्तान वो केड़ी लड़ने वाली, 1 घंटे से हम रो रही हैं प्रोग्राम में, रो रो के पागल हो रही हैं। पसीने आपके आप कम अज कम 25-30 दफा कह चुकी हैं, हमें पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया, हमें तो फिर पकड़ मैं लिया, बैठी मैं आपकी पकड़ तरह लिया, 150 हमें हमारे स्टाम्प पेपर के ऊपर थोड़ी पर्चा हो भागे गया, हम लोग। हमारे ऊपर वो छापा लग गया। भाई बर्दाश्त करें, 4 साल हमने बर्दाश्त So किया। ये मान रहे कि ये मैंने कर तो रहे हैं। एक दफा ये मान रहे कि जो मैंने आपको जुल्म है, बताया है, जो जुल्म है, मैंने ये सिर्फ लोग एक दफा मान लिया। बताया है कि 4 साल में आपने क्या ज्यादतियां की हैं। आप 25 दफा रो चुकी अच्छा, हैं डॉक्टर साहब, अब एक कि हमें पकड़ लिया, हमें अब एक पकड़ लिया। सवाल है। कोई आगे प्रोग्राम को सवाल बढ़ाए, है। सबको पता है। नहीं, लेकिन मेरे साहब ने ये पकड़ मान लिया। तो लिया ना कि ये हम जबर भी- ये हम लोग भी ही कर अपनी रहे हैं। बातों को बताएंगे। ये नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, होगी नहीं, ना बात। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जुल्म हमारे साथ हो रहा है वो इन्होंने किया है। Why not? हमारे दौर में भी हुआ, आप भी थोड़ा बर्दाश्त करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये ऐसे ना करें आप इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा वो आप मुझे रहने दो। अच्छा चल, आप डॉक्टर हैं, हौसला करें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, हौसला मैं सारी बातों को छोड़ दें, ये दूसरों से रिपोर्ट लेते हैं ना, अपनी रिपोर्ट तो पब्लिक में जाएं, जरा 20 लोगों में हल्के में तो जाके दिखाएं। हाँ, हमें जरा मुझे बताएं तो सही, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर पुलिस की सिक्योरिटी के, ये मुझे 20 लोगों में जाके देखा, इनको लग पता जाए। आप ये बताएंगे, ये जो खतून आपके साथ बैठी हुई हैं, ये आपको कहीं से गाय चोर नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल मैंने क्यों किया है ज़रताज बीबी इनसे? लेकिन एक और भी, इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर FIR है कि मैंने कार की डिग्गी में बैठ के जो है वो कार की डिग्गी में मैंने गाय डाली और मैं ले गई। कार की डिग्गी में आपने गाय डाली? जी, और मैं चोरी करके सिंगल हैंडेडली। और ये मुकदमा किधर दर्ज हुआ? ये थाना खुम्बी है, जामपुर के अंदर कच्चे के इलाके में, ये मेरे ऊपर FIR डाली। लेकिन आपके प्रोग्राम में ना एक और बात मुझे पता लगी, और एक टेक्सला में भी है, टेक्सला में ATM मशीन तोड़ी है। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ATM मशीन तोड़ी है उन्होंने? नहीं, तोड़ने का तो नहीं, ये कैसे तोड़ सकती हैं? क्या पता को पैसे से निकाल लिए हो। हर एक को अपनी तरह समझा हुआ है। हर एक को अपनी तरह समझाओ, बस होता है कोई काट शाट इधर उधर हो जाता है, बंदा कोई नहीं। चले, ये अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफ राय है, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे से इत्तेफाक भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये बात गलत है। आपको नहीं लगता कि अगर आप
तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का ऐलान करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला शुरू हो जाता है, तो इसको मेरे जैसे लोग लिंक तो करेंगे ना? नहीं, लिंक नहीं करना चाहिए। आपको इसलिए 4 जज चाहिए वहां पे कि आपने इन पर पाबंदी लगानी है? नहीं, ये जो लिंक करने की आपने बात की है, ये तो ऐसा है जैसे आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, शक नहीं करना चाहिए। ठीक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि अभी पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी नहीं है? हतमी नहीं है। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, तो ये इस फैसले आपका का ओपिनियन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बैक फुट पे चले गए, वैसे अच्छी बात है। नहीं, देखिए, फैसला वो होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, पॉलिटिकली सस्टेनेबल हो, टेक्निकली सस्टेनेबल हो। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले 2 साल से जो जुल्म जबर का दौर बढ़ता ही जा रहा है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि ये बढ़ता ही जाए और इसमें कोई कमी ना है ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। और इस जुल्म जबर के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक़ में दिया और इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया और इमरान खान पर बनने वाले जाली केसेस भी ख़त्म किए, तब से नून लीग और उनके सहूलतकारों को ख़तरा महसूस हो रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन में प्रोपागंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन में इस कदर होशो-हवास खो चुके हैं कि उनको ये इल्म नहीं हो रहा कि उनके इस तरह के ओछे हथकंडों से मुल्क का नुकसान हो रहा है और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और मुल्क में अमन सुकून और माशी बदहाली की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से इमरान खान को नुक्कर में लगाकर जेल में रखा जाए और पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान की अदलिया पर सवाल उठाए जाते थे जो किसी हद तक सही भी थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ के लिए डट चुकी है और कानून और आइन पर फैसले कर रही है, तब नून लीग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अगर यही प्रोसेस जारी रहा तो और इंसाफ पर और कानून और आइन के मुताबिक फैसले होते चले गए तो नून लीग कहाँ जाएगी, क्योंकि नून लीग का एक भी काम नहीं है जो कानून और आइन के मुताबिक, और आज तक नून लीग ने साजिशें की हैं और कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी हैं सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए। तो अब इनको ये लगता है कि वो जुल्म जबर करके इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं और इनको ये लगता है कि जुल्म जबर की इनको इजाज़त है क्योंकि वो ताकत रखते हैं। नाज़रीन, ये भूल चुके हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। नाज़रीन, ये भूल चुके हैं कि सबसे बड़ी ज़ात और ताकत वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जब वो इंसाफ करने पर आएगा तो इन जुल्म जबर करने वालों को इबरत का निशान बना देगा। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा।